اور وہ کہاں پہ ہے میں آپ سب کو بتاتا ہوں. نمبردار وہ انشاءاللہ واپس آ جائے گا. جیسے غصے سے گیا ہے اور ویسے پیار سے آ ہی جائے گا انشاءاللہ. اغوا تو نہیں ہوا, ہاں وہ خود گیا اپنی مرضی سے, جی وہ لڑ کر گیا ہے. وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی یوٹیوبر کے گھر. اگر وہ کہہ دیتا وہ شاید کال کر کے بتا دیتا. سارے پریشان ہیں گھر. اچھا وہ ناراض کی کس بات کے یہ پتہ چلا. نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, صبح خیر. امید کرتے ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آباد رہیں. ہمیں دو میں یاد رکھیں, ہنستے مسکراتے رہیں, بالکل گلاب کی پھولوں کی طرح. یہ نیو ہے ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب, لائک, شیئر اور اچھے اچھے کمنٹ. تو صبح کی روٹین. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ, صبح بخیر. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہمارے تمام بہن بھائی دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہن بھائیوں دعاؤں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور ماشاءاللہ جی صبح ہو چکی ہے پھر سے, جیسے ڈیلی کی صبح ہوتی ہے. رات ختم ہو گئی ہے, صبح شروع ہو چکی ہے اور ذہن ادھر ہمیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہا ہے. ہم دھیان کرنا, ادھر نیمبو ہے, نیمبو ادھر آ جاؤ, نیمبو ڈانگ ماریں گے, ڈانگ. تو صبح کی روٹین ہماری شروع ہو چکی ہے. تو آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے, سکپ بالکل نہیں کرنا, ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے. آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے. تو ادھر کمل باجی میرے خیال میں پیڑے بنا رہی ہے جی. اور آپ سب بہن بھائیوں کے ہم جیسے ہم ساتھ ہیں ویسے آپ ساتھ رہا کریں. دیکھیں صبح جب آنکھ ہماری کھلتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں سے باتیں کرتے ہیں, آپ سب بہن بھائیوں کو دکھتے ہیں. تو آپ بھی ویڈیو کو دیکھا کریں, ویڈیو کو دیکھا کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کون سا کام. ویسے تو ہماری ڈیلی کی روٹین یہی ہوتی ہے, کھانا بنانا, لسی بنانا, مکھن بنانا, رائتا بنانا. ویسے سب بہن بھائی جانتے ہیں ہماری ڈیلی روٹین یہی ہوتی ہے. اور کچھ ڈان نہیں آتا بنانے کا. اور کہاں جائیں, کدھر جائیں, کہاں ویڈیو بنائیں, ڈیلی کا یہی ہم سوچتے رہتے ہیں. بس پھر ادھر ہی گھر ویسے آج بھی گرمی ہو رہی ہے, آج گرمی ہوگی, کل بھی گرمی تھی اور آج بھی گرمی پہلے سے زیادہ ہے. ہاں جی, کیونکہ آ جائیں ادھر. وہ محسوس ہو رہا ہے, صبح کا ٹائم ہے. چلیں آپ وہ کریں, روٹیاں لگائیں, میں نہا لوں یار. آپ نہاتے ہو, آ جائیں ادھر. آ جب وہ کیمرہ مین ادھر وہ کھڑے ہیں, سب جو کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے نا تو وہ کھڑے ہیں.
और रायता भी हमारा माशाल्लाह ये देखें तैयार है। आज जो है ना दोहरी डंडकी से मैंने इसे पीसी की मिर्च और सब्ज मिर्च को। और इधर लस्सी भी हमारी तैयार है, बर्फ डली हुई है। और ये है हमारा मक्खन। और कल से कमल बाजी खामोश खामोश है, कोई बातचीत नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। इनसे पूछा है, हाल वाल किया है? नहीं, अभी तबीयत जो है ना कमर बाजी की ठीक नहीं थी। कल दवाई भी ले गए बेचारे, दाम भी रखवाया। और दाम जो पीर है उसने कहा है कि आपको जिन भी बहुत बड़े हैं। और डॉक्टरों के पास जाती है तो वो कहते हैं आपका दिमाग का मसला है। जो दम रखवाने जाती है तो वो कहते हैं आपको जिन है। जिन है? हाँ जिन है। फिर ध्यान करना बाकी। हाँ उसने कहा कि आपको ना जिन है। अच्छा। हाँ ये किसको जिन है? मेरे जिन बहुत बड़े हैं। आज देखेंगे ये जिन कैसे लड़ाई करते हैं। आप बैठ के ना कर मेरे नाल। हाँ मैं हाथ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहन भराओ? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? खुशी है? तबीयत सेहत नीयत सब ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुछ तबीयत बेहतर है। शुक्र है कि आज जो है ना आपसे मैंने से बात तो की है। नहीं तो इसके जो है ना माथे में जिन आ जाते हैं बड़े बड़े। ध्यान बेटा। हाँ हाँ तितर भी आया करे, तितर का ध्यान के दे। चले रोटी भी लगा लें, फिर मिलते हैं। हाँ माशाल्लाह रोटी हमारी लग चुकी है और रोटी पे मक्खन भी लगाया जा रहा है। और इधर जो है ना ये दही ले आया है जैन भतीजा। इंशा खाने के लिए बैठी है तैयार। इंशा को सलाम करो। माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो। और ये इधर आपको क्या हुआ है? हाँ ये क्या है? ये गंदी बच्ची कल खेल रही थी तो नीचे गिर गई, बेचारी को ये चोट आई है। तो रात इसने हमें नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ। कहने लगी मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। गंदी बच्ची, इसने बताया नहीं हमें कि मुझे जो है ना मैं गिरी हूँ, मुझे चोट लगी है। और माशाल्लाह इधर हबीबुल्लाह भी आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटे को जा रहा हफ्ते में उसको तरफ फॉलो। माशाल्लाह ये हबीबुल्लाह गया था जैन। इधर इधर आ पापा सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की में आंटी अंकल? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैन के सुबह सुबह जब आँख खुली तो कहने लगा पप्पो। मैंने कहा जी पप्पो। कहने लगा पप्पो आपने दही रखी है? मैंने कहा नहीं मैंने तो दही नहीं रखी। तो कहने लगा आपको पता है मैं दही के साथ खाना खाता हूँ। ये इधर पहली बार आया हमारे यहाँ तो कहने लगा मैंने दही के साथ खाना खाना है। तो फिर इसे हमने पैसे दिए, ये जाकर उधर दुकान है हमारे साथ, वहाँ से जो है ना ये दही ले आया। इसके अंदर हमने चीनी भी डाल दी है। गंदा बच्चा नानी अम्मी से वो रोटी ले आओ। आ जाए इकट्ठे बैठो, सब इकट्ठे बैठो। शाबाश, मिल के खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, रायता भी है, साथ में दही भी है और लस्सी भी है। मज़े से नाश्ता कर रहे हैं बच्चे। और आपके भाई ने भी नहा लिया है। नाश्ता रेडी है डॉक्टर साहब? हाँ जी, ताज़ा ताज़ा और गरम गरम नाश्ता रेडी है। नाश्ता कर लें। ठंडी ठंडी लस्सी भी बनी हुई है जी। रेडी हो? नाश्ता ले आऊं? हाँ जी, आई एम रेडी। माशाल्लाह। IM का मकसद क्या है? नाश्ता गोइंग। अच्छा नाश्ता तो समझ आ गई, ये गोइंग का क्या मकसद है? चाओ। अच्छा जी, हाँ जी। ओके जी, ओके जी, ओके ले आती हूँ। माशाल्लाह नाश्ता मैं ले आई हूँ। आज जिस बहन मेरे आना है नाश्ता करने के लिए वो जी welcome। जी, जल्दी जल्दी आ जाए। मामू जान भी हसन नाश्ता। ने ये मेरे इंग्लिश पे मैंने ऐसे लबड़ा के काट दिया। ये लबड़ाक नहीं था। माशाल्लाह आप वैसे इंग्लिश तो बोल लेते हो ना? कहाँ बोल लेता हूँ यार, नहीं बोल लेते। चले नाश्ता कर लें फिर मिलते हैं। ओके ओके। बस बच्चों ने नाश्ता कर लिया। थोड़ी सी देर अभी बोला मामा उठ जल्दी कर, आप जो है स्कूल की तैयारी करनी है आपने। और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैं पीती हूँ सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी करके उसके अंदर जो है नींबू डाल के फिर मैं पानी पी के बाद में मैं करती हूँ नाश्ता, क्योंकि ये वज़न भी कम करता है। ये आपके भाई ने बताया कि डेली का जो है ना आप पी लिया करें।
ये इसी वजह से मैं डेली का ये बनाकर पी लेती हूँ। नाश्ता हमने कर लिया है और जो परेशानी बनी हुई है अल्लाह ताला साहब की परेशानी दूर करे, तो हम दुआ ही करते हैं। बात जो है ना नंबरदार की हम कर रहे हैं। अभी तक जो है ना नंबरदार का कोई पता भी नहीं चला। नंबरदार गाल गई। हाँ वो शुदा अल्लाह मैं तो पहले छोड़ दी थी, बहुत चंगा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। बस वो जो है ना अपनी अम्मी अबू से नाराज होकर गया है खुद। हाँ अच्छा। वो खुद नाराज होकर गया है, कोई पता नहीं है कहाँ गया है। बस कभी कोई कहता है हमारे यहाँ है, कभी कोई कहता है हमारे यहाँ है, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं हमें मजाक की है। अभी जो ना कल उसका जो ना कज़न है, खालाजाद कज़न है इरफान, उसने वीडियो लगाई कि नंबरदार हमारे पास है। तो सब जो ना वहीं पे चले गए, अहमद भाई भी मुखलिस भाई भी सब वहीं पे गए। तो जब वहाँ पे गए तो उनने कहा कि मैंने मजाक किया है, मेरे पास तो नहीं है। हाँ लेकिन वो भाभी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाभी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो जहाँ पे भी होगा अपने हिफ्ज़ अमान में होगा। आप परेशान हो, इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है ना हमारा भाई बेटा नंबरदार वो इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। जैसे गुस्से से गया है और वैसे प्यार से आ ही जाएगा इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं। डर लग दे था वाल खने अल्लाह ख्याल करे, सब खुद क्या नहीं याद है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का। नाश्ता हमने कर लिया था, काफ़ी देर हो गई है और कुछ मेहमान आ गए थे, अभी भी बैठे हुए हैं। मेरे कज़न आया हुआ है तो उनसे मैंने गपशप की। फिर बाहर कुछ मेहमान आ गए हमारे, वहाँ पे मैं चला गया। तो अभी जो है ना मैं आया हूँ, कौन सी बस बात वही चल रही बात है। मैं अभी ने वीडियो देखी जो इरफान भाई के घर गए थे, तो उसने मजाक की कि मेरे पास है। जब वहाँ पे गए तो मैंने अभी वीडियो देखी है। पहले तो मैं खुश होगी कि इरफान भाई के पास होगा, मिल जाएगा, लेने के लिए जा रहे हैं। जब मैंने वीडियो पूरी मुकम्मल देखी तो वहाँ पे उसने कहा कि मैंने बस ऐसे ही कह दिया है, मेरे पास नहीं है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि काफ़ी जो है ना मिस गाइड भी कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ हुआ वो इमरान वाला मसला, इमरान गुम हुआ था ना, तो हर बंदा हमें फ़ोन करके कहता था कि इधर हमने देखा है, इधर हमने देखा है। तो हमने काफ़ी भाग दौड़ की, काफ़ी जो है ना इधर उधर हम घूमते फिरते रहे उसके पीछे। तो काफ़ी परेशान भी थे और परेशानी में जब कोई मिस गाइड करता है ना तो काफ़ी फिर और ज़्यादा टेंशन होती है। तो अल्लाह ताला नंबरदार की हिफाजत फरमाए, वो जहाँ भी हो वो खैर खैरियत से हो। वो अगवा तो नहीं हुआ, वो गया अपनी मर्जी से, वो लड़कर गया है। और वो कहाँ पे है मैं आप सबको बताता हूँ। वो अपने किसी व्यूवर या सब्सक्राइबर के पास गया हुआ है, किसी खानदान में वो नहीं गया। अगर खानदान में होता तो वो सब बता देते बिल्कुल, क्योंकि ये सारे वो यूट्यूबर हैं। अगर वो किसी के यहाँ जाता तो पता ज़रूर चल जाता। वो किसी रिश्तेदार के घर में नहीं है और ना ही किसी यूट्यूबर के घर है। वो अपने किसी व्यूवर या सब्सक्राइबर के यहाँ गया हुआ है। और अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो नंबरदार प्लीज़ मेहरबानी करें, आप ज़्यादा परेशान न करें अपने ख़ानदान वालों को, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है। आपकी अम्मी की हालत कितनी ख़राब है और सारे परेशान होकर भाग दौड़ में लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप वापस आ जाओ। इतनी ज़्यादा नाराज़गी जो है ना नहीं होनी चाहिए अपने माँ बाप से। हाँ जी, पूरी फैमिली परेशान है, चाचे परेशान है, दादी अम्मी दादा अबू सब परेशान है। जब से आप गए हो जहाँ पे है ना, उसको भी मना किया हुआ है कि आपने कॉल करके नहीं बताना। अगर वो कह देता वो शायद कॉल करके बता देते जहाँ पे भी है। आप तो माशाल्लाह समझदार हो, फिर ऐसी मजाक क्यों कर रहे हो अपने? हाँ माशाल्लाह, छोटे बच्चे भी नहीं हो और मेहरबानी करो आप जो है ना इतना ज़्यादा परेशान ना करो, क्योंकि काफ़ी परेशान है, सारे परेशान है घर में। वो नाराज की किस बात के लिए पता चला? दादे बस ऐसे जैसे घर में बातें हो जाती हैं, हर घर में होती हैं। तो माँ बाप तो अपने बच्चों को नसीहत करते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं कि अगर बेटा ये काम ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि हम भी बच्चों वाले हैं, हमें पता है। बिल्कुल, हमें जो ना खुबैब अक्सर परेशान करता है, वो स्कूल जाने के लिए जिद करता है। वो तो हमें पता है, हम जो ना उसको किस तरीके से समझाते हैं, कैसे उसको स्कूल भेजते हैं, क्योंकि माँ बाप बुरा नहीं सोचते अपने बच्चों के लिए। हाँ, बाकी असगर भाई आप पता लगाएं, अगर किसी से उनका राब्ता होता हो
किसी सब्सक्राइबर से, व्यूवर से, शायद वो उनके यहाँ चला गया हो, ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है। बाकी अपने रिश्तेदारों में नहीं है वो, ना ही किसी यूट्यूबर के घर है। अगर वो होता तो साफ ज़रा पता चल जाता। पता चल जाता, वो तो वीडियो लगाते, वीडियो में कहते कि हमारे पास है। बिल्कुल। और माशाल्लाह काफ़ी लायक बच्चा है और शरीफ बच्चा है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। परेशान तो काफ़ी हैं वो बेचारे। साफ ज़ाहिर है जब बच्चा किसी का गुम हो जाता है, घर से चला जाता है, तो घर वाले कितने परेशान होते कितनी हैं। परेशान होते हैं वो हम जानते हैं, हमें पता है, क्योंकि हमारे साथ ये मसला हुआ है। बिल्कुल। हमने ये इधर उधर भाग दौड़ की है, ये सारी बातें हम जानते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला ऐसे हालात किसी के साथ ना करे, किसी के बच्चे ना कहीं पे जाएं और ना ही गुम हो। हाँ माँ प्यो वास्ते तो हाँ, टेंशन एक हमारे यहाँ इधर वो एक औरत है, तो उसका बेटा कराची में गुम हुआ। पहले भी हमने उसका जिक्र किया हुआ है। हाँ। आज उसको 20 दिन हो गए होंगे, एक माह या ऐसे हो गया होगा, मुझे अभी याद नहीं है। अंजीरे हो तो जब हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमें बुलाया, तो हम जब वहाँ पे गए तो सीरियसली उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उसके 2 बच्चे भी हैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे भी रो रहे थे कि हमारा, वो बच्चे कह रहे थे कि हमारा अब्बू, उसकी वाइफ कह रही थी कि मेरा खामन, उसकी अम्मी कह रही थी मेरा बेटा, पूरी फैमिली जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बिल्कुल। अभी तक उस बेचारे का कोई सुराग नहीं मिला, कोई पता नहीं चला। वो कराची से गुम हुआ, अभी तक वो लापता है। लापता है, क्योंकि अल्लाह ताला उसने बस उसकी भी हिफाजत फरमाए। जिंदगी वहीं पे गुजारी, न्यू नहीं थे। उसकी अम्मी कह रही थी कि वो कब से वहीं पे रहने लगे। ये तो रात को जब खाना खा के वापस आया तो कुछ याद आया, रात को 12 बजे वहाँ पे लेने गया तो वापस नहीं आया। पूरी फैमिली उनकी इधर भी परेशान है, जो कराची वाले हैं वो भी उसे ढूंढ रहे हैं। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, किधर है, कैसा है, अभी तक कुछ भी पता नहीं है। हाँ, अल्लाह प्यारे ताला बहन सबकी भाइयों, हिफाजत ऐसे जो फरमाए। ना गलत किसी को ना कहा करें, जिसके साथ होती है उसे पता होता है। वो बड़े कहते हैं ना, जहाँ पे आग जलती है जहाँ वही जलती है। बिल्कुल। और जो है ना बस वो हम लोग होते हैं किसी के ऊपर ये ऐसे मजाक होते उड़ान, गाल करन, जी। ऐसे हाँ, नहीं बस करना चाहिए। हौसला अफजाई जिसका करनी बच्चा चाहिए। गुम हो जाता है तो बात करते हैं, जब तक में गुम ना हो तो कौन बिल्कुल। करता है? कोई नहीं करता। अपने बच्चों के ऊपर ऐसी कोई बात करता है? नहीं, कोई नहीं करता। हर रात वो पुलिस को भी लेकर गए थे, जी। काफ़ी जगहों पे ढूंढा, देखा, लेकिन अभी तक कोई उसका अता पता नहीं है। ऐसा हम दुआएं कर रहे हैं और आप सबसे भी गुजारिश है, जितने हमारे देखने वाले हैं, हाँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। वो जल्दी मिल जाए। हाँ इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। और जहाँ पे भी है वो सबकी वीडियो भी देख रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ, अगर देख रहे हो तो प्लीज़ मेहरबानी करो, आप इतना परेशान ना करो, करो, घर अपने घर वापस आ वालों जाओ। को आप वापस आ जाओ, क्योंकि सारे परेशान हैं। जो आपके जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। आपके देखने वाले सब परेशान हैं, तो आप ज़्यादा परेशान ना करें, वापस आ जाए। बस आज की जो औलाद है ना, अल्लाह ताला उसे अपना शर्म हया दे। आज की जो औलाद है वो कहते हैं कि माँ बाप हमें कुछ ना कहें, माँ बाप जो बस करनी है मर्जी हाँ, करे कर दूं। माँ बाप कुछ ना। माँ बाप तो अगर उनकी डांट होती है, डांटते हैं, तो उनकी डांट नसीहत होती है। बेशक वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे गलत ना हो, कोई गलत कदम ना उठाएं, गलत ना करें, ये अच्छे से रहें। माँ बाप तो नसीहत ही करते हैं, उनकी डांट या मार होती है तो नसीहत होती है। तो बच्चों को चाहिए कि वो अमल करें, ना कि आप जो है ना घर छोड़ के भाग जाएं, घर वालों को परेशान करें। आप कितना परेशान है वो सब लोग बेचारे। बहुत ज्यादा परेशान है इस अल्लाह सुना वक्त। परेशानी कहीं को ना लेगा बात। बेशक इतना दुआ मांगते हैं अल्लाह से। हाँ, अल्लाह ताला उसको अपने भी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हाँ, दुआ इंशाअल्लाह करते हैं। ताला। और साथ सबकी खुशी परेशानी ना दूर रहे, करे। जहाँ जब नंबरदार आ जाएगा, पता नहीं कितना खुशी होगी सबको। बहुत ज्यादा खुश होंगे कि हमारा बेटा वापस आ गया है। अल्लाह ताला रहम फरमाए जी, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। दुआ में याद रखा करें, किसी को दूर बैठ कर ऐसे जज नहीं करना चाहिए, और गलत जो है ना नहीं कहना कहना चाहिए। चाहिए झूठ है या सच है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। हाँ, ना ही आप जानते हैं, या जो दूर बैठे हैं वो भी नहीं जानते। जिनके साथ होता है उन्हीं को पता होता है, और अल्लाह ताला की ज़ात सच जानती है। बेशक तो ऐसे किसी को गलत ना कहा करें।
अल्लाह ताला बस सबको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखे, सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी दुआ है। तो अभी हमने जाना है वो कुछ सामान वगैरह और भी लेना है कमरे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इट भी पहुंच चुकी है, गार्डर तैयार, डोर वगैरह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। काफ़ी दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसका इंतज़ाम कर दिया कमरे का। तो ये हमारे बस में नहीं होता, करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। हम जिसकी वीडियो बनाते हैं, तो जो बहन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका दिल करता है कि ये मुस्तहिक हैं, तो उनके लिए फिर वो इमदाद वगैरह भेजते हैं, तो हम एक ज़रिया बने हुए हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात सबके मालो जान में बरकत अता फरमाए, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारा तो मकसद यही है, जो बेचारे हकदार हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए आसानियाँ हों, उनके लिए हम कुछ ना कुछ कर पाएँ। हमारा तो दिल करता है, लेकिन हम खुद इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते। दिल तो दरिया है, लेकिन ये होती है अफोर्ड की बात। अफोर्ड बंदा कर सकता है तो फिर किसी की हेल्प करता है, मदद करता है, और जितनी हमारी ताकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह हम वो करते हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबके मालो जान में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो बस दुआओं में याद रखा करें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें रखिए दुआओं में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।